آج ویو 360 میں HIV ایڈز سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں صورتحال کیسی ہے؟ پنجاب کے علاقے جلال پور جٹا میں 10 سال قبل HIV پر قابو کیسے پایا گیا؟ صرف یہ رئیسوں کی جیب سے غربت کا حل نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی جیب سے غربت کا حل ہے۔ اور مینا ہاؤس جہاں مسلمان اپنے غریب امریکی ہم وطنوں کی بھوک مٹا رہے ہیں۔ پاکستان میں 8 برسوں کے دوران ایڈز سے ہلاکتوں میں 4 گنا اضافہ۔ HIV کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ شروع کریں گے ہم سندھ کے ضلع لاڑکانہ سے، جو بدترین HIV آؤٹ بریک کا سامنا کر رہا ہے۔ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق اب تک علاقے میں تقریباً 34,000 افراد کی اسکریننگ کی جا چکی ہے اور ان میں 1,000 سے زیادہ HIV کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ان میں بہت سے بچے بھی شامل ہیں۔ تعلیم اور صحت کی سہولتوں کی کمی کے شکار مریض HIV کی وبا سے کیسے لڑ رہے ہیں؟ رتو ڈیرو سے کرن مرزا کی رپورٹ۔ رتو ڈیرو کے رہائشی ریاض حسین سیلرو کے خاندان کے 2 بچے 3 سالہ فراز اور 2 سالہ ارشاد کئی دنوں سے بخار میں مبتلا تھے۔ جب ڈاکٹر نے بچوں کے بلڈ ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ دونوں کے خون میں HIV وائرس موجود ہے۔ سب سے میجر ایشو یہ تھا کہ ہمارے پاس افورڈنگ نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا کہ کس طرح جا کے بچوں کا علاج کرائیں۔ پھر ہم نے یہاں گاؤں میں ڈونیشن کی، لوگوں نے فنڈنگ کی، اس کے تھرو ہم ہاسپٹل تک گئے، پھر کراچی تک بھی ہم گئے۔ رتو ڈیرو میں ریاض حسین سیلرو جیسے کئی اور خاندان اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ ڈاکٹر ڈیویا آئے ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ٹیسٹ کروائے ہیں، اس نے کہا ہے کہ دوا کھاتے رہو۔ تعلیم یافتہ نہیں ہے، گاؤں کی عورتیں ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ جب ڈاکٹروں کی ٹیم آئے گی تو ہمیں سمجھائے گی۔ ہم بڑوں کو تو بیماری لگ گئی ہے، چھوٹے بچوں کو کیسے بچایا جائے؟ بارن کے کیے بچائیں۔ لاڑکانہ کے گرد و نواح میں HIV وائرس کے کئی 100 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کے لیے اس مرض کے پھیلاؤ کو روکنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ جو آؤٹ بریک رتو ڈیرو میں آئی ہے، وہاں سے جو ریزنز ملے ہیں ہمیں، اس نے اس کو اسٹگما کو تھوڑا بہت کم کیا ہے خود سے۔ مثال کے طور پہ ایک ریزن سامنے آیا ہے کہ سرنج کو بار بار استعمال کرنے سے یہ بیماری پھیلی ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ خون میں HIV کی تصدیق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایڈز کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علاقے میں خوف کا سما ہے۔ احتیاط کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ، ان کے ساتھ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ان چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں۔ ہم نے بار بار لوگوں کو، میڈیا کے دوستوں کو، تمام عام آدمیوں کو، عام ڈاکٹروں کو کہ بھئی اس کو ایڈز نہ کہیں، یہ ایڈز کا وائرس ہے۔ یہ وائرس جب بدن میں آتا ہے تو اس کو بھی سال لگتے ہیں، ایسے نہیں کہ 1-2 سال، 8 سال کے بعد، 9 سال، 10 سال کے بعد ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جو امیونٹی کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر وائرس ہے تو ڈیفینیٹلی وہ قابل علاج ہے۔ ادویات کی مدد سے HIV کو ایڈز میں بدلنے سے روکا جا سکتا ہے، مگر یہ ادویات عمر بھر کھانی ہوتی ہیں اور رتو ڈیرو میں HIV سے متاثرہ بیشتر افراد انہیں خریدنے کی مالی سکت نہیں رکھتے۔ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کی ٹیمز فی الحال تو دوائیں مفت فراہم کر رہی ہیں، مگر سوال یہ بھی ہے کہ ایسا کب تک جاری رہ سکے گا؟ کرن مرزا، وائس آف امریکہ، رتو ڈیرو، صوبہ سندھ۔ لاڑکانہ میں HIV کی اسکریننگز اب بھی جاری ہیں۔ 15 سال کی عمر تک کے HIV مریضوں کو رتو ڈیرو کے ہسپتال سے یہ ادویات دی جا رہی ہیں، جہاں ایک وقت میں تقریباً 3 ماہ کا سٹاک رکھا جا رہا ہے۔ 15 سال سے بڑی عمر کے افراد کو ادویات کے لیے لاڑکانہ جانا ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق کم از کم 1,60,000 افراد HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ویژن ہے کہ 2020 تک، یعنی اگلے سال تک، ہر ملک میں HIV کے شکار 90% افراد کو یہ علم ہو کہ ان میں یہ جراثیم پائے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے 90% اپنا علاج بھی کرا رہے ہوں۔ پاکستان میں صرف 14% مریض یہ جانتے ہیں کہ وہ HIV پازیٹیو ہیں اور صرف 10% علاج کروا رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ 2010 سے 2018 کے درمیان پاکستان میں ایڈز سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1400 سے 6,500 تک پہنچ گئی۔ یہ 8 سالوں میں تقریباً 4.5 گنا اضافہ ہے۔ تو جس قسم کی صورتحال کا سندھ کا ضلع لاڑکانہ اس وقت سامنا کر رہا ہے، 10 سال پہلے صوبہ پنجاب کا ضلع گجرات بھی اسی سے نمٹ رہا تھا، جس کے بعد پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کا آغاز ہوا۔ لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ HIV اور ایڈز کوئی دھبا نہیں، صرف ایک مرض ہے، اور HIV پازیٹیو ماں سے صحت مند بچے کی پیدائش بھی ممکن ہے۔ تو سمن خان کے ساتھ چلتے ہیں جلال پور جٹا اور دیکھتے ہیں کہ مشکلات کے باوجود HIV کے پھیلاؤ کو کیسے کامیابی سے روکا جا سکتا ہے۔ 2008 میں جب صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں
एड्स का आउटब्रेक हुआ तब ये इस्तिलाह बहुत से लोगों के लिए नई थी। यहाँ का मुतासरा इलाका जोगी मोहल्ला जैसे नो गो एरिया बन गया था और यहाँ के लोग स्क्रीनिंग से हासिल करता डेटा मंजर आम पर आने के बाद महकमा सेहत को अपनी बदनामी का जिम्मेदार ख्याल करते थे, क्योंकि इस मर्ज की तशखीस ने बहुत से गलत तस्वुरात को जन्म दिया और लोगों की मुश्किलात बढ़ाई। जैसे वो कहते हैं पंजाबी में, हुक्का पानी बंद कर दिया। वहाँ पे लोग जाते नहीं थे, उनको अपने घरों में आने नहीं देते थे। ਅਸੀਂ ਆਪ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਲਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ नहीं, ਉਹਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ नहीं देना नहीं, ਉਹਨੇ ਲੈਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मर्ज के साथ जुड़े डर ने मरीजों के बारे में भी खराब राय को जन्म दिया। फलाने दे मर्द नूं भेजिए, बाहरों आया जे मर्द नहीं सी सही, ये ते गलत काम करता सी, उन्हें बीमारी हो गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जरूरी था कि लोगों में शऊर व आगही पैदा की जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पहले लोगों का एतमाद बहाल हो। उन्हें बताया गया कि ये बीमारी सिर्फ जिनसी ताल्लुकात से नहीं बल्कि इस्तेमाल शुदा सरेंज या HIV से मुतासरा खून के इंतकाल से भी हो सकती है। 2008 में ईडीओ गुजरात के ओहदे पर फाइज डॉक्टर मुनीर ने इसके हल के लिए खास मंसूबा तश्कील दिया था। ताल्लुक रखते थे उनको यूज किया कि भाई हम आप किसी कृषि मेंटेन रखेंगे, किसी को आपका नाम नहीं बताएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पिक एंड ड्रॉप सर्विस और फिर राशनिंग सर्विस और फ्री ट्रीटमेंट की सर्विस और फ्री टेस्टिंग, हर चीज फ्री दी गई। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक सूबे में आज एड्स के 8,300 रजिस्टर्ड मरीज एक्टिव ट्रीटमेंट पर हैं, जिनमें से लाहौर और इसके गिरदोनवाह में 2600 मरीज रजिस्टर्ड हैं। गुजरात में ये तादाद तकरीबन 1100 है। प्रोग्राम इंतजामिया का कहना है कि सिर्फ गुजरात सेंटर में ही 200 HIV पॉजिटिव माओं ने सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया। हम आवाम में ये शऊर पैदा करना चाह रहे हैं, एक डिमांड जनरेट करना चाह रहे हैं कि जब कोई बंदा हजाम के पास जाए या ब्यूटी सैलून पे जाए तो वो खुद भी देखें कि वो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग HIV हेपेटाइटिस B C की करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में HIV आउटब्रेक अचंभे की बात नहीं, क्योंकि हर जगह ही अताई, सरिंजों से नशा करने वाले, सेक्स वर्कर्स और ख्वाजा सराओं जैसे हाई रिस्क ग्रुप्स मौजूद हैं। जरूरत लोगों में इस बीमारी से मुतल्लिक शऊर उजागर करने की है, जिसके लिए जलालपुर जट्टा को मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है, जहाँ लोगों का एतमाद हासिल करने का फायदा ये हुआ कि अब वहाँ के बेशतर लोग इस मौजू पर खुलकर बात करते हैं, बल्कि इलाज में भी कोई झिझक और शर्मिंदगी महसूस नहीं करते और काफी हद तक मुआशरती टैबूस को शिकस्त दे चुके हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, गुजरात। पाकिस्तान में HIV का फैलाव कितना बड़ा मसला बन चुका है, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे डॉक्टर सलीम आजम से, जो कई दिहाइयों से HIV के मरीजों के साथ काम कर रहे हैं और इस वक्त कराची से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि HIV के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? सारा बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले जलालपुर जट्टा और रतोदेरो के जो HIV एड्स की रोकथाम के इंतज़ामी अफसरान ये बता रहे थे कि वो लोग इस सिमत में कितनी कोशिशें करते रहे हैं और उसमें जो नुक्ता मरकज़ी अहमियत का हामिल है वो है सिरिंजेस। मेरा सवाल अपने मुल्क के दानिश्वरों से, डॉक्टरों से, जो हमारे प्लानिंग के एहलकार हैं उनसे ये है कि हमने सिरिंज के मल्टीपल यूज़ को किस हद तक रोका है। क्या ये मुमकिन नहीं था कि हम इंटरलॉकिंग सिरिंजेस इस्तेमाल करते जो सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होती और उसके बाद वो ज़ाया हो जाती है, यानी जो एक अनसेफ हेल्थ प्रैक्टिस है वो एक बहुत बड़ी वजह है इस मर्ज को फैलाने में। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा का गोल है कि 90% मरीज़ अपना HIV स्टेटस साल 2020 तक जानते हों और फिर उनमें से भी 90% अपना इलाज करा रहे हों। हमने देखे आज के स्टेटिस्टिक्स से पाकिस्तान इस टारगेट से बहुत पीछे है। इसका आप क्या देखते हैं, क्या नतीजा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि सूरत हाल दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा तशवीशनाक हो रही है। अभी डॉक्टर मेमन, जिनका ताल्लुक रतोदेरो से है, वो ये फरमा रहे थे कि हमें ये पता चला कि रतोदेरो में इसका आउटब्रेक हुआ है। जनाब वाला, बरस पहले रतोदेरो में यही सूरत हाल इससे पहले पैदा हो चुकी है और वो जो आउटब्रेक था वो हुआ था जेल के कैदियों से। जो लोग जेल में मौजूद थे उनसे पता चला था कि वो HIV पॉजिटिव हो चुके हैं
मेरा सवाल जो मैं अपने आप से पूछता हूँ वो ये है कि इतने सालों से हमें ये पता है कि रतोदेरो बदकिस्मती से एक मरकज़ है HIV एड्स के फैलाव का, तो गवर्नमेंट ने जो इदारे हैं जिनकी बैनुल-अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं इस सिमत में? लेकिन जब मसला पैदा होना शुरू हुआ तो उसको टाइमली तरीके से नहीं हैंडल किया गया। अब जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, आपके ख्याल में वो कितना सस्टेनेबल है? क्योंकि मरीज बहुत सारे जो हैं वो गरीब हैं और उनको उम्र भर के लिए अद्वियात की ज़रूरत होगी। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना आपके ख्याल में कितने अरसे तक लोगों का इलाज मुफ्त में जारी रखा जा सकेगा रियलिस्टिकली? देखिए, बरस से इस मैदान में काम करने के बाद भी मैं अपने आप से अक्सर ये सवाल करता हूँ कि अगर बाज़ इंतहाई मुश्किल हालात की वजह से हमें HIV की अद्वियात गैर ममालिक से नहीं मिलती, तो बताइए हम क्या करेंगे? पाकिस्तान के अंदर ये दवाएं बनती नहीं हैं। इस बात की कोई ज़मानत नहीं दे सकता कि ये दवाएं हमें हमेशा मिलती रहेंगी। और इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो दवाएं हमें दे दी जाती हैं, हमें से मुराद है HIV एड्स के मरीजों को, वो लोग उसी को खामोशी से खा लेते हैं। उनके पास चॉइस नहीं है कि वो इंजेक्टेबल्स ले सकें या वो सिरप की शक्ल में ले सकें या उसको दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकें। अगर हम उनसे डॉक्टर के तौर के ऊपर ये कहते हैं कि तुम ये 2 दफ़ा खाओगे, तो उनको हर कीमत पर 2 दफ़ा खाना है। और सारा आप जानती हैं कि ये वो लोग हैं जो सड़कों पर पड़े होते हैं, जिनके पास दवा रखना तो बहुत दूर की बात है, पहनने के लिए पतलून भी नहीं होती। तो मुझे आप ये बताइए कि वो उन अद्वियात को 2-2 या 3-3 दफ़ा पाबंदी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मरीजों ऑप्शन उनका हक है कि अगर मुझे दिन में एक दफ़ा सूट करती है दवा, तो मैं एक ही दफ़ा लूँगा। अगर मुझे इंजेक्शन ज़्यादा मेरे लिए मुनासिब है, तो मुझे फोर्स क्यों किया जाता है? फिर अभी मैंने सुना कि हमारे एक दोस्त ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इलाज का। यहाँ पे सिर्फ वक्त की कमी की वजह से मुझे गुफ्तगू को ख़त्म करना होगा, लेकिन आपने बहुत एक अहम पॉइंट रेज किया और वही सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कि आज अगर मुफ्त में अद्वियात मिल भी रही हैं तो मरीज़ किस हद तक फॉलो अप कर सकते हैं उस ट्रीटमेंट को, किस हद तक समझ सकते हैं कि उनको किस तरह इलाज करना है और वो फिर कितने सालों तक बाकायदा जारी रह भी सकता है, ख़ास तौर पर जब मरीज़ के अपने पास रकम ही नहीं है और कह लीजिए कि इल्म ही नहीं है इस हवाले से कि वो अपना इलाज कैसे जारी रखे। डॉक्टर सलीम आज़म हमारे साथ थे कराची से और पाकिस्तान में HIV मरीजों के साथ कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सारा, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा HIV और एड्स के हाई रिस्क ग्रुप्स में शामिल हैं। सिर्फ लाहौर में ख्वाजा सराओं की आबादी 80,000 से ज़्यादा और कम्युनिटी के अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 5% ख्वाजा सरा HIV पॉजिटिव है। हमने गैर सरकारी तंजीम ख्वाजा सरा सोसाइटी से बात की कि वो अपनी बरादरी में इस मसले के मुतालिक शऊर उजागर करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं और उनके तजर्बे से आबादी के जो दीगर हिस्से हैं वो क्या सीख सकते हैं। लाहौर एक ऐसा शहर है जो एज़ कम्पेरिजन टू अदर सिटी इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो कम्युनिटी माइग्रेट करती है। जो सारी रिसर्च करते हैं इसमें हम बड़े गुरुज़ को इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम बड़े गुरुज़ के साथ बैठ के अंदाज़ा लगा सकें कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी है एटलीस्ट। तो इस साल की हमारी लाहौर की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 80,000 से ऊपर जा रही है, जिसमें तकरीबन 400 डेरे कवर हो रहे हैं। इसमें से जो हमारा प्रेवलेंस रेट है वो है 5.2%। ठीक है, तो 5.2% का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट कोई 1100 के आसपास जो है वो लोग जो हैं वो उसमें से पॉजिटिव। जब हम सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि पता नहीं सेक्स को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिटी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और कम्युनिटी के जो क्लाइंट्स हैं वो मेन स्ट्रीम से हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेटली जब कम्युनिटी इफेक्ट होगी और कम्युनिटी अगर सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं करेगी और गवर्नमेंट इनके लिए इनिशिएटिव्स नहीं लेगी इनकी हेल्थ के ऊपर, तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये वायरस जो है वो मेन स्ट्रीमिंग और जो हमारी मेन सोसाइटी है उसमें फैलना शुरू हो जाए। कम्युनिटी में जब HIV एड्स फैल रहा है तो सबसे पहला इशू तो ये होता है कि कम्युनिटी खुद डिनाइल में होती है, उनमें एक्सेप्टेंस नहीं आती कि हाँ भाई हम HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर फॉलोअप काउंसलिंग करनी पड़ती है, फिर हमें गवर्नमेंट ट्रीटमेंट सेंटर्स के साथ उनको लिंक करना पड़ता है ताकि वहाँ से कन्फर्मेटरी टेस्ट भी करवाएं। ख्वाजा सरा सोसाइटी ये ख्वाजा सरा का ही ऑफिस है। यहाँ पर हमने एक इन हाउस क्लिनिक, छोटा सा क्लिनिक सेटअप रखा हुआ है जहाँ पर हम कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साइको सोशल सपोर्ट में वी हैव अ कम्युनिटी काउंसलर
काउंसलर जो कि कम्युनिटी की काउंसलिंग करते हैं। अगर कम्युनिटी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हमसे फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, जो पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है, तो हम उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज देते हैं। जब भी HIV एड्स की बात होती है तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि HIV का हर मरीज़ एड्स का मरीज़ नहीं होता। HIV से जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता जाता है और इसलिए ये जरसूमा बिगड़ कर एड्स में बदल सकता है। एहतियात और अद्वियात के सहारे HIV के साथ भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। HIV से बचने के लिए इताई नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं। यकीनी बनाएं कि जो सिरिंज या ब्लेड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नया है या कम से कम अगर ब्लेड है तो स्टेरलाइज्ड है, जरासीम कुछ अद्वियात उस पर इस्तेमाल की गई हैं। ज़रूरत के वक्त खून भी रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही हासिल करें। जिनसी ताल्लुकात में भी एहतियात लाजमी है। आज के शो में हमने पाकिस्तान में HIV एड्स की सूरत हाल पे बात की। कल देखेंगे कि अमेरिका में ये मसला कितना शदीद है और फिर यहाँ इसके बारे में क्या किया जा रहा है। आप अपने सवालात और अपनी आराम से शेयर कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। सियासत में कदम रखना पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए मुश्किल काम है। अमेरिका में कैसा है ये आप देख सकेंगे इस हफ्ते 2 अमरीकी अरकान कांग्रेस की नज़र से जो ऐवान नुमाइंदगान में अपना पहला साल मुकम्मल कर रहे हैं। आज मिलते हैं रियासत कैलिफोर्निया से मुंतखब होने वाली कांग्रेस वुमन केटी पोर्टर से और जानते हैं कि वो कैलिफोर्निया से कैपिटल हिल तक का सफ़र कैसे तय कर पाई। बहुतों के लिए रियासत कैलिफोर्निया अपने साहिलों और चमकती धूप के लिए जानी जाती है। तवील अरसे से इसका शुमार अमेरिका की आज़ाद ख्याल रियासतों में होता है, लेकिन अगर आप बहरुल काहिल से जमीनी इलाकों पर 20 मिनट तक हवाई सफर करें तो एक ऐसे कदामत पसंद इलाके में पहुंचेंगे जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने तजर्बेकार सियासतदानों को भी हैरान कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी के पास गई और कहा, मैं कांग्रेस की नौ मुंतखब रुकन केटी पोर्टर हूँ। ये एक अजीब ही तजर्बा था। यहाँ रहने वालों के लिए भी ये तजर्बा अजीब ही था, क्योंकि पोर्टर एक डेमोक्रेट हैं और इनके कदामत पसंद और रिपब्लिकन आबाई हल्के ने तारीखी तौर पर 1983 से अब तक किसी डेमोक्रेट को मुंतखब नहीं किया। हमने इस रियासत में 22 पॉइंट से फतह हासिल की, जो अपनी तर्ज की गैर मामूली तब्दीली कही जा सकती है। किसान घराने से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की ने ये सब कैसे किया और कैसे अपनी जमात और ज़राब्लाग में एक उभरता हुआ रोशन सितारा बन गई, इसका एक सीधा सा जवाब है। केटी पोर्टर येल और हार्वर्ड से फारिग तहसील हैं और अर्वाइन कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में कानून की साबिक प्रोफेसर हैं। इनकी इंतखाबी मुहिम को ये क्रेडिट जाता है कि इसकी वजह से वोटर्स की तादाद 2 से बढ़कर 30% तक पहुँच गई। ये बाएं बाजू की जानिब झुकाव रखने वाले नौजवानों को आगे ला रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पोर्टर शुरू में इस जानिब नहीं आना चाहती थी, लेकिन सन 2016 के सदारती इंतखाब में वो हल्के में रिहाइश के मामले पर काम करने के लिए सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की टीम में शामिल होने के लिए तैयार थीं। ताहम इंतखाब के बाद और तब्दीली की चाह ने उनका रुख सियासत की जानिब मोड़ दिया। सदर ट्रम्प की जीत से कबल मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और पोर्टर ट्रम्प की पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस में तारीखी तनवो का हिस्सा बनी, जिसमें डेमोक्रेट्स की अक्सरियत थी और जिसमें 25% खवातीन थीं, जो अमरीकी तारीख में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन अमरीकी आबादी के तनासुब से ये फिर भी कम है। ऐवान नुमाइंदगान की इस रुकन ने अपनी 45वीं सालगिरह पर हलफ उठाया। जब मैं यहाँ पहुँची तो फौरन ही उन्होंने केक काटा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेनेटर वॉरेन ने बजाते खुद आकर मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन हार्वर्ड में पोर्टर की साबिका प्रोफेसर थी और अब वो सदारती उम्मीदवार हैं। The gentle lady from California, Miss Porter, is recognized for 5 minutes. पोर्टर फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के रुकन हैं। अब अगली रिपोर्ट में आप 3 बच्चों की तलाक याफ्ता माँ पोर्टर की जानिब से पूछे जाने वाले चुभते हुए सवालात सुनेंगे, जिन्होंने इन्हें कौमी बहस मुबाहसे में नुमाया मकाम दिलाया है। कैरोलिन परसूटी के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। तो आपने देखा केटी पोर्टर कैलिफोर्निया से कांग्रेस तो पहुंच गई, वोटर से किए गए वादे भी पूरे कर पा रही हैं या नहीं, ये आप जान सकेंगे कल शाम व्यू 360 में। चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं।
फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। गरीब अफराद की ज़िंदगी में अगर तब्दीली लानी है तो सबसे पहले उनका पेट भरना होगा। ये अल्फाज हैं एक पाकिस्तानी के जो अमेरिका में गरीब और बेघर अफराद की भूख मिटा रहे हैं। नीलोफर मुगल आज हमें ले जा रही हैं मैना हाउस। सुबह के 8 बज चुके हैं। मन्ना हाउस में नाश्ते के लिए लंबी कतार लग चुकी है। गुर्बत की वजह से मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में वाक़ई मन्ना हाउस गुज़िश्ता 53 सालों से बेघर और नादार अफराद को मुफ्त खाना फराहम कर रहा है। मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ अच्छा खाना खाने से मैं लुत्फानंदोज होता हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तानी अमरीकी सलीम गौहर गुज़िश्ता 30 बरसों से इस इदारे से वाबस्ता हैं। पहले जब मैंने देखा इतनी गुर्बत में, कहा इधर इतने दौलत भी है, गुर्बत भी है, ये कैसे हो सकता है, तो इसका तो हल होना चाहिए। तो मैंने वॉलंटियर करना शुरू कर दिया। पर और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इधर सब लोग इकट्ठे खाते हैं, चाहे गोरा हो, हबशी हो, मुसलमान हो, मसीही हो, जूइश हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। यहाँ रोजाना 200 से ज्यादा बेघर और जरूरतमंद अफराद नाश्ता करने आते हैं। ये ब्रेकफास्ट प्रोग्राम साल भर जारी रहता है। नाश्ते के बाद ये लोग यहाँ के डे केयर सेंटर में अपना वक्त गुजार सकते हैं, जहाँ उन्हें वो तमाम सहूलियात मुहैया की जाती है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, जैसा कि नहाना, साफ कपड़े, तिबी सहूलियात या उनके रोज़मर्रा मसाइल का हल। ये प्रोग्राम सरकारी और प्राइवेट फंड से चलता है। यहाँ पर काम करने वाले रजाकार भी साल हर साल से यहाँ आ रहे हैं। मैं गुज़िश्ता 25 सालों से हर मंगल के रोज यहाँ आती हूँ। ये काम करते हुए अच्छा लगता है। सिर्फ ये रईसों की जेब से गुर्बत का हल नहीं है, ये आम लोगों की जेब से गुर्बत का हाल है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैं क्या करूँ, अगर आपके पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए दे दो, उस फर्क पड़ेगा उससे। और यहाँ से मदद लेने वाले भी मदद देकर जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ सफाई का काम कर रहा हूँ। गुर्बत, माशी मुश्किलात, मनशियात की आदत और जहनी बीमारियों की वजह से मन्ना हाउस आने वालों में अब रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन का ये कहना है कि वो मन्ना हाउस को वुसअत दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, बाल्टीमोर, मैरीलैंड। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। इंस्टाग्राम पर भी आप उर्दू VOA को फॉलो कीजिए बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पे आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की एक अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। सारे ज़मान को यहाँ पे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।